Hello everyone, welcome to the channel. So, as per the demand of most of the students, in this video, we'll be covering a very basic, uh, or we can say a basic step of how to crack the NTA NET exam. Okay, so as you all know that your result has been announced and you all must have started preparing for the exam that is going to be held in June, and very soon the notifications, the application forms and everything will be out for us to fill and for us to fill out the entire thing. But the very important thing is that key one should always know that key uh, how we have to proceed in order to crack the exam. Okay, it's a very basic question that everyone, maybe you are at whatever level you are, level 1, level 2, level 0, level 8, regarding the preparation of an exam. It always comes to our mind that how do we have to crack this particular exam, or what should we, how should we proceed with our preparations, how should we how should we study, or how should we work on our preparation, on our topics, on our concepts, that we are able to crack these exams. Okay, lately, when the net was with UGC, when UGC was conducting net exam, the pattern of paper was different, and as soon as NTA took over, the pattern changed completely. Right. So when UGC was there conducting the net exam, the pattern was like there were three papers: paper one, paper two, paper three. Paper 1 was your general paper that was common to all. Paper 2 was 50 questions, I guess, and they were 50 or 75 questions, I guess. And they were very basic questions, easy level, right? And then we were having paper 3, a bit of complicated questions, difficult questions, right? And but when NTA took over, the concept changed. We were now having only two papers, paper one, paper two, in one shift only. Okay, no, not a gap of any half an hour gap or 15 minutes gap between two papers. It was your choice, whichever paper you want to do. It was in one. ठीक है, एक में पेपर थे दोनों, paper one, paper two. Now paper 2 earlier was there, the paper net exam was very easy, as I have told already. Papers questions were very easy, they were direct, and you were able to clear those questions with basic knowledge of your subjects. But lately, if you see the trend, or if you see the pattern, you will notice that the questions have become conceptual. Only by studying the basic topics, or by studying the important topics, is not enough anymore. What you require is you need to study the full subject, full topic conceptually, because the questions that are being asked are very basic, but at the same time they're not so easy that everyone will study those topics. अगर आपको एक topic उठाओ, let's suppose about memory, if we talk about, ठीक है, if we're studying any topic, let's say memory, तो मेमोरी में हम क्या पढ़ते हैं? मेमोरी में वी स्टडी मेन मेमोरी, दैट इज योर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स एंड ऑल, right? What we do is we study which is the fastest one, which is the slowest one, which has what and all. But we do not study the interdependencies of the memories with each other, or we do not study that how are they connected to the computer, or how are they working, or what all is related to memory. We just study the basic things of memory, and then we leave those things that we feel are not very important. But if you see this paper that was held in this in Feb 2023, the paper was related to basically the questions that were not expected to us, but we were not expecting that they can ask these questions, but they are expecting us कि we should know, being a student of computer science, we should know these basic concepts. So what we have to do is now we have to focus in such a way, and we have to study in such a way that we are able to study basic things about each and every topic. Teachers also have to change the strategy of teaching, because अभी तक we were also teaching, we were also dealing in the same way, we were also dealing like कि ठीक है, memory से question आया तो यही question आएगा, OS से question आया तो यही basic से question आएगा. But now we also as a teacher have to change our concepts of teaching, and you as a student also has to change your way of grasping things, way of studying things. ठीक है. So in this video basically we'll be discussing that how we can work, or we can study to crack the NTA net exam. Okay,
So basically, if you see, there is a level. Abhi I told you level 0, level 1, level 2. So each student can categorize himself or herself into a level. What are the levels? Beginner level. Matlab you are just starting your preparation. आपने बस अभी अभी स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन. यू हैव जस्ट थॉट ऑफ कि ओके अब मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, नाउ आई शुड वर्क टूवर्ड्स समथिंग. अब आपने अपना एरिया डिसाइड किया कि ओके नाउ आई वांट टू गो इन टीचिंग. मतलब आपने मास्टर्स किया अपना, ठीक है. टिल दैट टाइम यू वर कंफ्यूज कि मैं मास्टर्स करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं या मैं टीचिंग वर्ल्ड में जाऊं या मैं रिसर्च वर्ल्ड में जाऊं. बट नाउ यू हैव मेड अप योर माइंड कि ओके आई डोंट वांट टू गो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई विल बी गोइंग ईदर इनटू द teaching line or I'll be going into the research area. Okay. And now for that, what I should do for either if even if I want to go in your teaching line or if I want to go in your what you say research area, I have to crack what exam? What exams are there that I should crack? So you thought, okay, this is one exam that is NET, GRF. So both the exams I have to crack. For NET, I have to crack NET so that I can get entry in the teaching area, and GRF so that I can continue with my PhD. Plus, I can get promotion in that particular area. Abhi recent में there was one notification that GRF is no more compulsory for getting no job in your assistant professor. But see, you have to keep this in mind that entry level पे net is enough, ठीक है. But after some point of time you will need promotion in your life, है ना. मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आप कितने साल तक वर्क कर सकते हो. यू कैन वर्क फॉर 5 years, यू कैन वर्क फॉर 6 years और मोर टू मोर यू कैन वर्क फॉर 10 years. मतलब बहुत एक्सट्रीम पे चल रहा हूँ. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नीड कि आई शुड नाउ प्रमोट माई सेल्फ, है ना. असिस्टेंट से एसोसिएट बनो, एसोसिएट से प्रोफेसर बनो. दिस इज व्हाट योर thinking will become after a period of time, because your surroundings will change, your life will change, your lifestyle will change. तो अब आपको लगेगा कि now I should change, now I should get a promotion. For that promotion JRF is necessary. अगर सिर्फ नेट कर रखा है आपने, देन यू कैन गेट जॉब एज असिस्टेंट प्रोफेसर. बट इफ यू वांट टू गेट प्रमोशन इन योर वर्क, यू हैव टू डू PhD. एंड फॉर दैट JRF इज कंपल्सरी और JRF इज नेसेसरी. बिकॉज ऑब्वियसली PhD भी करोगे तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहोगे ना, कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी कर लो. ऑब्वियसली यू विल बी वांटिंग, एंड even very basic university or basic no what you say college requires a JRF for PhD. अगर if it is following the norms of the UGC rules and regulations. ठीक है. तो बिगिनर लेवल हो गया कि वो सोचेगा कि ओके नाउ आई हैव टू स्टार्ट, आई वांट टू गो इन दिस पर्टिकुलर लाइन एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क. तो ये आप हो गए बिगिनर लेवल पे, ठीक है. सो अब एग्जाम जॉब दोगे वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. दिस इज योर बिगिनर लेवल, ठीक है. सेकेंड लेवल हो गया आपका इंटरमीडिएट लेवल. इंटरमीडिएट लेवल क्या हुआ? इंटरमीडिएट लेवल इज बेसिकली द मिडिल वन. मिडिल वन मतलब this particular student has given 1 or 2 attempts, ठीक है. He or she is aware about the entire topic, entire syllabus. What he or she is lacking is either speed or the concepts are not clear or the conceptual knowledge is not there. तो वो आ गया आपका इंटरमीडिएट लेवल. मतलब यू आर इन दैट फेज कि आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, बट आपको ये नहीं पता कि कैसे उसको पढ़ के अप्लाई करना है. यू इन दैट स्टेज, दैट इज योर इंटरमीडिएट स्टेज. एंड द लास्ट स्टेज इज योर एडवांस स्टेज. एडवांस क्या हुए कि दे हैव अटेम्प्टेड 3 to 4 times, they have cleared net exam. The only thing that is lacking is JRF exam, and they have to prepare themselves for the JRF particularly. तो वो आपके एडवांस लेवल पे चला जाएगा, ठीक है. अब the exam that was held in February 2023, ठीक है, उसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें, let's talk about the result. Cut off for net exam was 158 for general I'm talking, ठीक है. For unreserved category I'm talking right now. 158 आपकी कट ऑफ गई थी for net, and 206 कट ऑफ गई थी for JRF. नो डाउट कट ऑफ बहुत हाई गई थी, एंड इतना हाई एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट अगर आप पेपर का लेवल देखो, पेपर का लेवल डिफिकल्ट था, बट किस पॉइंट ऑफ व्यू से? द पेपर वॉज डिफिकल्ट विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट द कंसेप्ट्स वर नॉट क्लियर. द पेपर वॉज एंटायरली कंसेप्चुअल. दिस यू विल अग्री.
द पेपर वॉज कंसेप्चुअल, पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत हाई फाई मामला हो. हाई फाई से आई मीन कि दैट इज वेरी टफ. आई विल नॉट से दैट पेपर वॉज वेरी इजी. ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि पेपर वॉज वेरी इजी की कट ऑफ 206 चली गई. पेपर वॉज डिफिकल्ट, वॉज एवरेज टू डिफिकल्ट. क्यों एवरेज टू डिफिकल्ट? क्यों? बिकॉज दिस we as students were not prepared for this type of paper. We as students are preparing for paper like the basic, मतलब जो पेपर हम एक्सपेक्ट करते हैं फॉर योर, जो आपका एक पेपर होता है ना, इसमें आपका होता है हाई लेवल न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब एकदम लेवल ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स का कि 2-3 बार पढ़ के ही वी कैन सॉल्व. वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस केम फ्रॉम बेसिक लेवल. मतलब फ्रॉम ऐसे बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, वो वाले क्वेश्चंस आए. न्यूमेरिकल्स कम थे एंड न्यूमेरिकल्स वर इजी, बट जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए दैट वर द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. दोज क्वेश्चंस वर रीड बिटवीन द लाइंस. मतलब अगर एक लाइन है, आपकी बुक में कोई लाइन है, टेक्स्ट बुक में कोई लाइन दी हुई है, तो उस लाइन से ही उन्होंने क्वेश्चन निकाल दिया. सो दीज वर दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपने वीडियोस देखी हैं साइड बाय साइड, आई एम डिस्कसिंग, we are going with this your exam. एक आपकी सोल्यूशन सीरीज चल रही है, सोल्यूशन ऑफ दिसंबर 2022 एग्जाम हेल्ड इन फरवरी 2023. तो वो सोल्यूशन सीरीज चल रही है. यू कैन वॉच दैट सोल्यूशन सीरीज एज वेल साइड बाय साइड. उसमें आई एम एक्सप्लेनिंग दी क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस विद along with the concepts. तो आप वो भी देख सकते हो कि what all we have discussed up till here. ठीक है. So the questions we were hoping for were not there. The questions that they have given, when we were not ready for those questions, because the questions were very conceptually very easy, लेकिन हमने नहीं पढ़ा था उसके लिए, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई चली गई. सो अब जो जून का एग्जाम होगा, यू हैव टू एक्सपेक्ट कि कट ऑफ इतनी ही हाई जाएगी. हो सकता है कि इन जून कट ऑफ नीचे हो जाए, कट ऑफ विल डिक्रीज, बट वी कैन नॉट थिंक इन दैट वे एनी मोर. For every exam we have to prepare our mind that okay, the cutoff will be around 200 for GRF. तो अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर ऑन एडवांस लेवल, जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, आई थिंक दैट एडवांस लेवल पे अगर आप हो, सो यू डेफिनेटली हैव टू स्टडी बेसिक थिंग्स. ठीक है, बेसिक आपको पढ़ना है, कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं. along with आपको ये माइंड लेके चलना है कि द कट ऑफ फॉर JRF विल गो अबव 200. इस लेवल से जब आप पढ़ाई करोगे तभी आप उस चीज पे फोकस कर सकते हो. हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कट ऑफ जो है आपकी वो 180 चली जाए फॉर GRF, है ना. मतलब जरूरी नहीं कि हर बार 200 क्रॉस करे, बट वी हैव टू कीप आवर माइंड कि ओके, कट ऑफ विल ऑलवेज बी 200 प्लस ओनली, एंड आई हैव टू स्टडी विद दैट थिंकिंग. अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सो यू हैव टू ट्राई कि आपके 200 प्लस मार्क्स आए मॉक टेस्ट में. ओके, सो वील डिस्कस वन बाय वन कि बिगिनर लेवल वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट वाले को क्या करना चाहिए, एडवांस वाले को क्या करना चाहिए. सबसे पहले टॉक अबाउट बिगिनर लेवल. अब बिगिनर लेवल कौन सा स्टूडेंट है? दैट स्टूडेंट जिसने अभी अभी ये डिसाइड किया है, द वन विच हु हैव डिसाइडेड जस्ट नाउ दैट आई हैव टू गिव दिस एग्जाम. उसे नहीं पता कि क्या है एग्जाम में, उसे नहीं पता कि what all is there in this particular exam. He or she is just started with this thought that I have to give this particular exam, that is UGC NET. ठीक है, तो अब क्या है सबसे पहला पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट है बी थरो विद द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न. इफ यू आर एट अ बिगिनर लेवल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is the exam pattern. ठीक है, कैसे एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, what all 50 questions पेपर 1 में है, 100 questions पेपर 2 में है. दिस ऑल बेसिक थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो. बिकॉज क्या होता है, कभी कभी आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स कि दे स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर 1 से भाई पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है. वो इन देखते हैं कि किस चीज का वेटेज कितना है. पेपर 1 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट पेपर 2 आपका कोर सब्जेक्ट है, सो यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट पेपर. दोनों ही पेपर इंपॉर्टेंट है. आपको ये देखना है कि आप क्लियर कैसे कर पाओगे दोनों एग्जाम्स को, आप कट ऑफ में कैसे आ पाओगे. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू सी.
ठीक है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू सी सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। कभी कभी क्या होता है कि नो मेनी स्टेट एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं उनके सिलेबस को हम ये सोचे थे कि द नेट सिलेबस इज सिमिलर टू इट, बट सी सिमिलर इन वेरी few subjects are there that are not there in net but there in other exams. So you have the syllabus with you, and then with that syllabus you have to check कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है. This all you have to understand yourself. ठीक है. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बी थरो विद द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न. सिलेबस डाउनलोड कर लो, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी. दिस इज कॉमन टू ऑल. पेपर 2 इज मतलब अगर आप कोई और भी किसी और स्ट्रीम के हो, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप ओनली. ठीक है. बिगिनर लेवल के हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो और पढ़ किस चीज के लिए रहे हो. राइट. नेट पढ़ रहे हो, पर नेट क्यों पढ़ रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पैटर्न है एग्जाम का, क्या प्रोसीजर है एग्जाम का, ये सब कुछ पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस को गो थ्रू करो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, देन फ्रॉम विच बुक्स यू कैन स्टडी दीज टॉपिक्स. ठीक है. बिगिनर लेवल पे हो तो ये मत सोचो कि विद इन 3 months यू विल बी एबल टू क्लियर इट. गिव योर सेल्फ सम टाइम. अभी तो आपने सोचना स्टार्ट किया है. एग्जाम दो. ठीक है. मान लो आप सपोज आई एम अ स्टूडेंट जिसने मैंने अभी भी सोचा है कि आई हैव टू गिव दिस एग्जाम. जून वाला एग्जाम भी दो. ठीक है. नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो भी दो. सारे एग्जाम्स देते रहो, बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ टाइम. सारे एग्जाम से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, आपको आइडिया होगा कि हाउ टू गिव द एग्जाम, हाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम. अगर इफ आई एम एट अ बिगनर लेवल आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जून वाले एग्जाम में क्लियर कर लूंगी. क्यों? बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट. ठीक है. बट हाँ, ये है कि आफ्टर 6 to 8 months जो मैं एग्जाम दूंगी, आई कैन एक्सपेक्ट कि ओके मे बी आई कैन. देन आप 6 to 8 months के बाद आप एक इंटरमीडिएट लेवल में पहुंच जाओगे. यू विल नो मोर रिमेन अ बिगिनर अगर आप सारे एग्जाम्स देते चल रहे हो while you are preparing for exam. सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन. सिलेबस देख लिया आपने, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस आपके पास है. नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन. प्रिपरेशन कैसे करोगे? सब्जेक्ट वाइज करोगे. ठीक है. सब्जेक्ट वाइज करोगे, फिर टॉपिक वाइज. सब्जेक्ट्स में भी स्टार्ट करो टॉपिक 1 से एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट मेकिंग नोट्स. अब सब्जेक्ट कैसे लोगे, सब हाउ यू विल चूज योर सब्जेक्ट्स. सिंस यू आर एट अ बिगनर लेवल, I assume that everything is new to you, or you have forgotten all your concepts and everything. So what you will do is start with the subject that is easiest, that you feel is easiest. ठीक है. जो आपको लग रहा है कि this is easiest and I'll be able to complete it in 1 week. पहला सब्जेक्ट सबसे इजी लो, दूसरा सब्जेक्ट सबसे टफ लो. इजी टफ, इजी टफ, इजी टफ, ये वाला कंसेप्ट जब आप लोगे ना, यूज करोगे, सो इट विल नॉट बी अ बर्डन फॉर यू. क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन अपनी, वी आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड ऑल. जब हम एक टफ सब्जेक्ट उठा लेते हैं ना बिगिनिंग में, व्हाट हैपेंस इज कि वी लूज आवर इंटरेस्ट वेरी इजीली, क्योंकि वो टफ है, हमें समझ आ नहीं रहा है इजीली, है ना. सो व्हाट वी डू इज, ये तो हमसे हो नहीं रहा है, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, वी जस्ट लीव दैट सब्जेक्ट. वो ये नहीं करना है. सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट लो. जैसे सपोज कंपाइलर है, छोटा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स. तो कंपाइलर लिया आपने सबसे पहले. यू विल स्टार्ट, इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंपाइलर सब्जेक्ट लिया आपने. इट इज अ स्मॉल सब्जेक्ट एंड इट इज इजी एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो आपने कंपाइलर से स्टार्ट किया, या आपने सी प्रोग्रामिंग ले लिया अगर इफ यू आर वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग. ठीक है. सब थोड़े सब्जेक्ट स्टार्ट करो, इजी स्टार्ट किया आपने. अब जैसे ही आपका वो इजी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद गो फॉर टफ वन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. उससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड वन थिंग एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस सो दैट आई कैन, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम आपके अंदर कि एक चीज, एक सब्जेक्ट हम कर चुके हैं, अब ये हमें ये करना है. अगेन आफ्टर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गो अगेन फॉर एन इजी सब्जेक्ट. तो ऑल्टरनेटली शिफ्ट करो बिटवीन easy and tough subject. Now for every student easy and tough definitions are different. किसी के लिए कंपाइलर इजी है तो किसी के लिए कंपाइलर टफ है. तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट अपने लिए चूज करना है. सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हो रही है कि अपने अकॉर्डिंग यू हैव टू सी कि विच इज इजी विच इज टफ एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दैट. नेक्स्ट इज रेफरिंग टू स्टडी मटेरियल. whenever you start preparing yourself, स्टडी मटेरियल से यहाँ पे मतलब है कि या तो आप किसी का कोर्स ले लो,
ठीक है, या फिर यू कैन गो विद योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में क्या है कि टेक्स्ट बुक्स में बहुत थरोली दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सो यू कैन, मतलब व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, स्टार्ट स्टडिंग विद सम सॉर्ट ऑफ स्टडी मटेरियल। कोर्स लो, अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, मतलब किसी का कोर्स आपको कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इस टीचर की जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर, सो टेक दैट कोर्स, बाय द बुक्स दैट यू फील आर इम्पोर्टेंट टू यू। लेकिन अननेसेसरी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। ये नहीं कि बुक्स भी ले ली, कोर्स भी ले लिया और पढ़ा किसी से नहीं रहे हो। छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट करो एंड वहां से चीजें लो। ठीक है, मतलब अगर बुक ले रहे हो तो ट्राई टू गिव दैट बुक एटलीस्ट 15 days। उस बुक को कम से कम रेगुलरली 15 days पढ़ो। You will be able to understand कि whether you are getting the things from not where you are grasping those things or whether you are not able to understand। ठीक है, अननेसेसरी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर स्टडी मटेरियल ले रहे हो तो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल ओनली। ठीक है, तो इसके लिए एक थोड़ा रिसर्च करनी बहुत जरूरी है कि क्या चीज मुझे समझ में आ रही है, क्या चीज मैं ले सकता हूँ, क्या कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन अच्छे से हो रहे हैं, क्या चीज मुझे समझ में अच्छे से आ रही है, वो सब चीजें आपको अपने अकॉर्डिंगली, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट माइंड, हैज अ डिफरेंट माइंड सेट। सो हर किसी की वेरिएशन हो सकता है कि उसको किसी को क्या समझ में आ रहा है, किसी को क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एजुकेटर का आपको चीज देखनी है तो यूट्यूब पे सबकी वीडियोस अवेलेबल है। एक आध गिव 2-3 days एंड लुक फॉर द वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेटर जिसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, उसको देखो, उसको विजिट करो, उसकी वीडियोस को विजिट करो, उसकी वीडियोस 3 से 4 वीडियोस को देखो, समझो, एक टॉपिक को ट्राई करो अंडरस्टैंड। जो टॉपिक आपको नहीं आता है एंड आता है, दोनों टॉपिक्स को देखो। एक टॉपिक वो लो जो आपको आता है, एक टॉपिक वो लो जो आपको नहीं आता है, एंड देन ट्राई टू कंपेयर कि किस एजुकेटर ने आपको क्या अच्छा कंसेप्ट समझाया है जो आपको समझ में आ रहा है, उसके कोर्स लो। ठीक है, ऐसे नहीं कि 10-15 लोगों ने बोल दिया तो किसी का भी कोर्स ले लो, जो आपको सही लग रहा है उसके कोर्स लो। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स बनाना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको नोट प्रोवाइड करते हैं, दे गिव यू देयर नोट्स, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि अपने खुद के नोट्स बनाना इज द बेस्ट थिंग। जितना अच्छा आप अपने नोट्स से पढ़ के ग्रैस्प कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, उतना आप किसी और के नोट्स को पढ़ के नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। The notes that I have made are for my understanding. I have made those notes by keeping myself in my mind. आप जो नोट्स बनाओगे वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाओगे। सो हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। तो इसीलिए दूसरे के नोट भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि पढ़ो मत, बिकॉज उसमें कुछ हो सकता है जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, बट अपने पॉइंट्स भी अपने पास नोटेड होने चाहिए, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग है पढ़ने का। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो छूट जाता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे आपको ये बहुत जरूरी है कि अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस प्रिपरेशन। ये चीज आपको बहुत एक आपको डेडलाइन बना के चलनी पड़ेगी कि टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई हैव टू गिव 1 month। अगर आप ये बात करो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मुझे 1 month दैट इज 30 days देने हैं, तो इट इज योर श्योर शॉर्ट ड्यूटी कि विद इन 30 days आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको टाइम स्टार्टिंग में ही मैनेज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो ऑब्वियसली 8 to 9 months आपको लगेंगे फॉर प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे से एग्जाम निकालना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, नेट और जेआरएफ दोनों, तो 8 to 9 months का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बनाओ कि 8 months अगर मेरे पास है, इतने 10 to 11 सब्जेक्ट्स है मेरे पास पेपर 2 के, 10 यूनिट्स है पेपर 1 की, तो हाउ विल आई हैव टू मैनेज माई टाइम। टाइम टेबल अपना बनाओ, उस हिसाब से यू हैव टू गिव टाइम। अगर आप दिन के 3 घंटे आपने अपने फिक्स किए हैं कि फॉर एक दिन में मुझे 3 घंटे देने हैं, तो 3 घंटे आपको वो देने पड़ेंगे अगर आपको 8 महीने बाद वो एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, कहीं कहीं पे यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं, है ना, हमारे में भी यूनिट वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। तो हर आपने सपोज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सपोज
सीपीयू शेड्यूलिंग आपने कंप्लीट कर लिया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अब सीपीयू शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस करो, टेस्ट दो, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे कि वट एवर यू हैव स्टडीड वेदर यू आर एबल टू रिकॉल दैट, वेदर आपने अच्छे से पढ़ा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो टेस्ट हर टॉपिक के बाद, हर यूनिट के बाद मस्ट है देने। तो ये तो हो गया बिगिनर लेवल का, ठीक है, मतलब आपने अभी भी सोचा कि मुझे प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंटरमीडिएट लेवल। सो इंटरमीडिएट लेवल पीपल आर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट एग्जाम के दे दिए हैं, ठीक है, बट विद दोज इन दोज वन और टू अटेम्प्ट्स दे आर स्टिल लैकिंग फॉर नेट, नेट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीजन, ठीक है, वो आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे जिन्होंने पढ़ाई कर ली है थोड़ी बहुत, बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम एंड दे हैव गिवन दे हैव अटेम्प्टेड ईदर वन और टू अटेम्प्ट्स दे हैव ऑलरेडी डन। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है आपकी सबसे पहली, या तो एक आपका एग्जाम छूट रहा है, या फिर आपने कंसेप्ट अच्छे से टाइमली मैनेज नहीं किए हैं, या मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट का पॉइंट ये है कि you have missed certain topics with those time, तो अब आपको इस हिसाब से अपना टाइम प्रिपेयर करना है या टाइम मैनेज करना है, that what all topics you have left, जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। so you have to manage your time। आपके लिए जो टाइम है, सी बिगिनर लेवल को कम से कम 8 to 9 मंथ्स लगेंगे, आपको 5 to 6 मंथ्स लग सकते हैं फॉर गिविंग दैट फॉर क्रैकिंग, क्योंकि अब आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि नेट क्रैक करना है। आपका एग्जाम सी फॉर एवरीवन, चाहे आप कोई से भी लेवल के हो, ये एम लेके मत चलो कि नेट क्रैक करना है, ये एम लेके चलो कि नेट एंड जीआरएफ दोनों क्रैक करने हैं। अगर जीआरएफ क्रैक कर लोगे तो नेट ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएगा, तो ये एम लेके चलो कि जीआरएफ क्रैक करना है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो कि जीआरएफ आपका क्रैक हो जाए। करेक्ट, नेट को क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील अगर आप जीआरएफ को क्रैक कर लोगे तो। सेकंड, स्टडी टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट इन द प्रीवियस एग्जाम एंड मेक नोट्स। अगेन, जो टॉपिक्स आपने प्रीवियस एग्जाम्स में छोड़ दिए थे ये सोचिए कि दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड दे विल नॉट बी आस्क्ड, वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि डीबीएमएस में जो डेटाबेस है हमारा टॉपिक, उसमें हमारा बिग डेटा एक सब्जेक्ट है, नो एसक्यूएल एक टॉपिक यूनिट है, मतलब सब टॉपिक है, हडूप उसमें एक सब टॉपिक है। व्हाट वी डू इज कि हमने एक दो बार एग्जाम दिया एंड वी थिंक दैट दीज टॉपिक्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, हम वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन लास्टली 2 एग्जाम से वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज नाउ यू हैव टू स्टडी दोज टॉपिक्स जो आपने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वहीं आपकी लैक हो रही है कुछ ना कुछ चीज, और जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं उन्हें भी आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से, बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक दैट पर्टिकुलर एग्जाम, इसका मतलब आपके कंसेप्ट वीक है। नोट्स अपने खुद बनाओ, अपने नोट्स खुद बना के पढ़ाई करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक दैट एग्जाम इन अ मच नाइसर वे। रिवाइज टॉपिक्स whose questions were either wrong or which you were not able to do in the exam। एग्जाम में कभी क्या होता है कि सीपी शेड्यूलिंग एक टॉपिक है, इजी टॉपिक है और हम बहुत बार उसे पढ़ते हैं, हम हमेशा उसे पढ़ते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो वो क्वेश्चन आता है सीपी शेड्यूलिंग का, वो या तो हमसे होता नहीं या वो गलत हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है, सिंपली या तो आपने बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, एक वो अलग पॉइंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक एक अलग चीज है, या फिर आपका कंसेप्ट ही गलत लगा है। तो ये अंडरस्टैंड करना कि क्या गलती हुई है, कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट गलत था या हमारी कैलकुलेशन गलत थी, व्हाट वाज वेयर वी वेंट रॉन्ग, वेदर वी वर रॉन्ग विद द कैलकुलेशंस और वेदर वी वर रॉन्ग विद द कंसेप्ट, दैट यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग है तो इट वाज अ जेन्युइन मिस्टेक, वो हो सकती है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। बट इफ योर कंसेप्ट इज रॉन्ग, in that case you have to again study this particular topic, because somewhere you were not able to understand the algorithms correctly and you were not able to apply those algorithms in the given question। so topics जिनके questions या तो गलत हो गए या you were not able to do those questions in the exams, you have to revise those topics again। सिलेबस को रिवाइज करो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग विद दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। सो सिलेबस को रिवाइज करना है आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, नो मैटर आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया है, बट दैट रिविजन इज नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर। सो यू हैव टू अगेन चेंज योर स्ट्रैटेजी एंड अगेन यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दैट पर्टिकुलर रिविजन। मॉक टेस्ट, अगेन मॉक टेस्ट है आप किसी भी लेवल के हो, मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन।
सो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। आपके लिए ये कंडीशंस हैं कि आप मॉक टेस्ट डेली दो। बिगिनर वालों को ये था कि जब वो टॉपिक पढ़ लें तब वो दे, बट फॉर इंटरमीडिएट गिव मॉक टेस्ट डेली। 1 मॉक टेस्ट अ डे आपको देना ही है। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट लेवल्स पे। नेक्स्ट वी हैव एडवांस। अब एडवांस लेवल कौन सा हुआ? एडवांस लेवल वो स्टूडेंट्स में जिनका नेट तो क्रैक हो गया है बट समहाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर जीआरएफ, वो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, कि नेट आपका क्लियर है बट जीआरएफ आपको क्लियर करना है। एंड जीआरएफ आपको करना है। नेट क्लियर करके प्लीज कोई भी स्टूडेंट आराम से ना बैठे कि अब नेट हो गया मुझे कुछ नहीं करना है। और जीआरएफ आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे अपने करियर में ग्रोथ करनी है तो। टाइम मैनेजमेंट, आपको ये टाइम इस हिसाब से मैनेज करना है कि जो टॉपिक्स जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपने नहीं किए हैं, उन्हें टाइम मैनेज करके उन्हें करो। ठीक है, revised again same thing, revised topics whose questions were either wrong or which you were not able to know in exam, revising the entire syllabus at least 2 times। आपको क्या कर, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप कम से कम मॉक दो डेली 2 to 3 टेस्ट। बिगिनर लेवल जब एक टॉपिक कवर कर लेगा उसके बाद टेस्ट देगा। इंटरमीडिएट 1 विल गिव 1 मॉक टेस्ट अ डे, बट एडवांस लेवल वालों को बिकॉज सिंस योर कंसेप्ट्स आर वेरी क्लियर, आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं एवरी डे। अब वो आपकी वो है कि आप टॉपिक वाइज दे रहे हो, आप पूरे सिलेबस का दे रहे हो, या आप 2-3 सब्जेक्ट्स को मिक्स करके दे रहे हो, दैट इज योर कॉल, बट यू हैव टू गिव टेस्ट 2-3 टेस्ट डेली। ठीक है, रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 टाइम आपको रिवाइज करना ही करना है अलोंग विद द कंसेप्ट्स दैट आपने नहीं पढ़े थे। जो लुक आउट फॉर द मिस्टेक्स मेड इन द प्रीवियस एग्जाम्स एंड रेक्टिफाई देम। जो भी मिस्टेक्स आपने अभी तक जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम में दिए हैं, आपका नेट क्लियर हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है, लेकिन जीआरएफ रह गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग समवेयर। तो वो मिस्टेक्स आपको फाइंड करनी है और उन्हें करेक्ट करना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, सिंस आपका कंसेप्ट आप सिलेबस अब रिवाइज कर चुके हो, एग्जाम क्रैक कर लिया, तो सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है, तो अब आप क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। फिर अटेम्प्टिंग मॉक डेली 2 to 3 टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड। ठीक है, ये आपका पैटर्न है यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है आपका। ठीक है, पेपर 1 में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में नहीं है, मतलब यूजीसी जो आपका जीआरएफ नेट जीआरएफ है फिलहाल के लिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिकॉज गेट में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का 36 मान लो मार्क्स आ रहे हैं, बट समहाउ नेगेटिव मार्किंग होते होते वो 26 रह जाते हैं। सो आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज वेरी गुड। जब तक ये कंसेप्ट नहीं आ रहा है यूजीसी में, आई विल प्रेफर कि तब तक कोशिश करो कि आपके एग्जाम्स निकल जाएं, जब तक नेगेटिव मार्किंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर है, 180 मिनट्स का, कोई गैप नहीं पेपर 1 पेपर 2 के बीच में। जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, स्टार्टिंग में आपको दोनों पेपर्स मिल जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है, उसके हिसाब से यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्वेश्चंस। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 100, और इधर के क्वालिफाइंग मार्क्स है 200। मतलब बेसिकली क्या है, टोटल मार्क्स आपके पेपर 1 के कितने हैं? 100, क्योंकि कैसे 50 टोटल क्वेश्चन है आपके, है ना, तो 50 यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन 50 हो गए और +2 फॉर करेक्ट आंसर, तो टोटल आपके हो गए 100। यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, +2 करेक्ट आंसर, तो टोटल हो गए 200। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल पेपर आपका होता है 300 का। 300 में से फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर 158 आपकी कट ऑफ गई थी नेट की और 206 कट ऑफ गई थी आपकी जीआरएफ की फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो ये आपकी एक पैटर्न है एग्जाम का कि आउट ऑफ दीज 300 मार्क्स आपको ये अज्यूम करना है कि एटलीस्ट 195 to 200 तो आपकी रेंज होनी चाहिए एग्जाम्स की। तो जाके आप जीआरएफ, तो अगर हम इस साल की बात करें तो जीआरएफ तो फिर भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे बिगिनर से। ठीक है, तो अज्यूम आप गोल तो अपना लेके चलो कि 210 तक मार्क्स चाहिए मुझे, क्योंकि जीआरएफ की कट ऑफ 206 गई थी, तो 210 अगर आपका एम है, आपका गोल है, तो आपके जीआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 आवर्स में 300 मिनट्स हैं,
वो 300 टोटल मार्क्स हैं, 150 क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 150 क्वेश्चंस, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दिस इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आप गलत भी कर रहे हो, क्वेश्चंस छोड़ना नहीं है एक भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में तो ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग है, गलत हमने ऑप्शंस मार्क किए तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। बट व्हेन यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग देन दिस मींस 150 के 150 क्वेश्चंस आपको करके आना। करेक्ट? ये आपका पेपर 2 का टॉपिक्स है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये तो क्या था कि वी वर डिस्कसिंग कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, है ना। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, प्रपोजिशनल प्रेडिकेट लॉजिक, फिर ग्राफ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फिर वी वर थिंक कि ऑप्टिमाइजेशन में आपका लीनियर एलएलपी इंपॉर्टेंट है, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप थ्योरी आर आल्सो बीइंग आस्क्ड, क्वेश्चंस फ्रॉम बुलियन अलजेब्रा आल्सो बीइंग आस्क्ड। सो अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। नाउ द कंसेप्ट इज कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो कहीं से भी आपको क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट कर लो आप, और कहीं से भी आपको ये पढ़ना है। मतलब ये नहीं कि अब ये टॉपिक छोड़ दो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नो, अब आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में तो वी वर कवरिंग एवरीथिंग, हमको छोड़ भी नहीं रहे थे, तो दैट इज अनदर थिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ग्राफिक्स, अगेन वी वर कवरिंग एवरीथिंग। डीबीएमएस में वी वर नॉट एबल, वी वर जस्ट लीविंग कि बिग डेटा छोड़ देते हैं और नो एसक्यूएल छोड़ देते हैं, बट स्टिल नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दोस टॉपिक्स एज वेल। ऑपरेटिंग सिस्टम, सी मैंने जो पेपर का कंसेप्ट देखा है, पेपर जो है आपका वो बेसिक क्वेश्चंस बहुत आए हैं। मतलब जैसे आपका था वो HTML फाइल्स में अनरिजर्व फाइल्स और ये सब, तो वो सारे टॉपिक्स हम HTML पढ़ते हैं बट वी डोंट स्टडी दोज टॉपिक्स। मतलब HTML तो हमने पढ़ा लेकिन वो कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा HTML का। सो द क्वेश्चंस फ्रॉम दोज कंसेप्ट्स आर बीइंग आस्क्ड। तो हमें अब इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि जो टॉपिक्स हम छोड़ रहे हैं, मतलब अगर हम मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम से हमने सब कुछ कवर करा, ठीक है, सब कुछ हमने कवर किया, बट ये वाला पार्ट हमने छोड़ दिया, ये सोचिए कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दोस पार्ट्स ओनली। तो अब हमें उस हिसाब से अपना फोकस रखना है, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी, फ्रॉम एनीवेयर। उस चीज को आप अपने माइंड में लेके चलोगे, देन यू विल बी एबल टू क्रैक दोस पर्टिकुलर थिंग। पेपर्स है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो पेपर हुआ था आपका दिसंबर वाला, उसमें क्वेश्चन आपका इससे आया, ए स्टार से आया है ना। फिर आपका क्वेश्चन आया है न्यूरॉन्स वाले से, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। हमने ये टॉपिक्स पढ़े भी होंगे बट वी वर नॉट एबल टू डू दोज इन एग्जाम्स बिकॉज वी वर नॉट एबल टू रिलेट द टू कंसेप्ट्स। हमने न्यूरॉन्स वाले को न्यूमेरिकल करा है, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, बट वी वर नॉट एबल टू रिलेट विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन गलत हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क से बेसिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ट्रांसमिशन टाइम पूछा, प्रोपगेशन डिले पूछा, बेसिक क्वेश्चन था। बट सिंस हमें अगर हमें या तो उसका कंसेप्ट लगाना नहीं आया या फिर हमसे वो चीजें अप्लाई करनी नहीं, इसलिए हमारा वो गलत हो गया। कंपाइलर टीओसी से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस थे, बट अगेन वी वर नॉट एबल टू डू दोस क्वेश्चंस बिकॉज वी वर समवेयर नॉट एबल टू कंप्लीट द टॉपिक। क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं एंड समहाउ वी आर नॉट एबल टू रिलेट द टू टॉपिक्स। ये प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे साथ हो रही है। राइट तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उन चीजों पे फोकस करना है कि वो जो क्वेश्चंस हम जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं, दोज कंसेप्ट्स वी आर एबल टू रिलेट दोज टू कंसेप्ट्स। वहीं पे प्रॉब्लम हमारी हो रही है अगर हम, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू रिलेट द टू थिंग्स। ठीक है सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कोई भी अपनी क्वेरी लिख सकते हो। एंड फेब जो आपका एग्जाम हुआ था, फेब 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है, उसका सोल्यूशन इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड। ठीक है, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप फ्रॉम देयर। ठीक है, प्लस इफ यू हैव एनी सजेशन, अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं कि वी एज टीचर शुड डू दीज थिंग्स और वी एज स्टूडेंट वांट दीज थिंग्स फ्रॉम यू,
ऐसे हमें ऐसे कंसेप्ट पढ़ने जो भी है, प्लीज फील फ्री टू गिव योर सजेशंस, यू कैन गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी अपने सजेशंस हमें दे सकते हो, या फिर यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, एंड वहां पे भी आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हो कि what all you prefer and what all you feel like कि we should do these things and all, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका, वो आपका एग्जाम है जून में, मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, जून 2023 में। तो अब उस पर हमें फोकस करना है, जो जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या जो भी मतलब किसी भी लेवल, मतलब बिगिनर वाले भी एग्जाम देना। मैंने बोला ही है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे भी हो, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द एग्जाम, सो दैट यू कैन नो कि एग्जाम का टाइप क्या है, पेपर का टाइप क्या है, और किस हिसाब से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। Okay, that's it from this. I hope कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा कि how you have to prepare for your exam, how you can crack your exam. Again, if you have any problem, any query, please write to us. And if you have any doubt, you can always feel free to call us or message to us. ठीक है? Thank you everyone.